guys, welcome to the first episode of Roundtable with Rashi. So, this is basically a podcast series where I'll be engaging with people who have achieved something in their life in a very fun and a very interesting conversation so that you can have an insight of how did they achieve it, and they'll provide you some strategies, some tips and tricks so that you can also achieve that. So, today is the first episode of it, and in today's episode, we have AI Year 34 of CA Intermediate Examination conducted in November 2023. Hi, Jen. Welcome to the first episode of Roundtable with Rashi. First of all, a heartiest congratulations to you on scoring AIR 34 in CA Intermediate. The clearing CA Inter in itself is a very big task, and then scoring an all India rank above it is a cherry on the cake. So, कैसा लग रहा था आपको जब आपका रिजल्ट आया था? Like, how was the feeling? So first of all, thank you, Rashi, for inviting me to your YouTube channel for giving the interview. So yeah, as far as the feeling is concerned, that was so much amazing feeling. Like the whole preparation got summarized while you were viewing your result, and the happiness on the face of your parents you see after you tell them that what is your rank. And actually, like they weren't so much aware about the resulting systems, the marks, etc. So when I explained to them what is AIR 34, so they were really, really proud of me, and I love that feeling from inside. Yeah. Congratulations, Jen. So, अपने बारे में कुछ Thank you. बताओ, like tell me something about yourself, from where do you belong, your CA foundation, your CA Inter. So yeah, I am Jayant Bhatia. I am hail from Jaipur itself, Jaipur, Rajasthan. I have completed my schooling from Maheshwari Public School, Jawaharnagar, Jaipur. Recently, I have completed my CA foundation. I have taken coaching from Anil Sharma classes, which are in Bajaj Nagar, Jaipur, and I scored 317 out of 400. And I have completed my CA intermediate with the same coaching, Anil Sharma classes, and I have scored 590 out of 800 and got secured an All India rank 34. Wow, wow, amazing, amazing. So first of all, tell me कि आपने अपनी सीए इंटर की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? लाइक रिजल्ट आने से पहले, सीए फाउंडेशन रिजल्ट आने से पहले या उसके बाद, एंड हाउ डिड इट वेंट? So basically, my exams got over as far as I remember 20th December. So basically, then I took a trip of 10 days with my family. Then from the new year itself, I started my classes from 1st January or first week of January. Then the result came off in around February in 2023. Then it was like that was a moment when I properly started my studies of CA Inter. Till then, it was like, okay, we are just taking classes, coming home, and enjoying. That was it only. तो आपको श्योर था कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले? हाँ, foundation was like okay. It was कि maths was my favorite subject till then. So then I started कि ठीक है maths हो जाएगी और बाकी ठीक है. It was easier for me to get the passing marks. I was sure कि pass तो हो जाऊंगा बस. You said maths was your favorite subject till then, मतलब अब नहीं है? मैथ्स होता तो मैं अभी भी उसको फेवरेट रखता, पर अब ठीक है, अब है नहीं तो फिर तो ओके. अभी सीए इंटर के जो अभी आपने जो दिया था, आपने 8 सब्जेक्ट्स दिए थे, राइट, इन द या ओल्ड कोर्स. So out of those 8 यस. subjects, what was your favorite subject? Obviously, I would go for the practical ones, accounts, advanced accounts, costing. And in theory part, if I go for interesting, मुझे EISSM लगता था. SM में नहीं, EIS ज्यादा interesting लगता था. Very different answer as compared to जो Yeah. लोग बोलते हैं. तो आपने अपनी क्लासेस कब तक खत्म कर ली थी? Like you started, as you said, you started in January first week. Hmm. तो उसके बाद Hmm. how much time did you take to complete all your 8 subject की classes? Almost, I would say, July mid was majorly done. उसके बाद it was a chunk was left that was completed in first of August, first week of August. Everything was completed then. Then Oh, only mocks were there. so mocks, उसके बाद revisions, मतलब classes, जब हम बोलते हैं कि classes खत्म करी थी, तो उसमें क्या क्या आ Hmm. जाता है? Like आपने क्या क्या खत्म कर लिया था before? Classes covering up the 100% course, like from study mat, like practicing questions from study mat must be the basic thing that one must start with and complete it as far as possible. Then you can go for trying to complete it once by yourself. That must be covered. So till the first week of August, as I said, you covered entire classes, and once by yourself, like first revision was completed with the class. Yeah, almost I would say. I have started by then, half हो गया था. Full तो I wouldn't say that
इट वाज डन, बट या इट वाज लाइक कि क्लासेस आपने कर ली है, तो इतना मुझे अंदाजा था कि ठीक है, क्वेश्चंस अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता था कि हाँ ठीक है, ये इस चैप्टर का है, ये यहाँ से आया है, बस इतना आइडेंटिफाई कर पा रहा था। Okay. So with the classes you completed your RTP, MTP, PYQs also, या फिर वो उसके बाद किया था? नो दैट वर डन पोस्ट माय एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर जो मैंने दिए थे उनके साथ, और उसके बाद तक चलता रहा था ये। ओके ओके। एंड अपने को सब्जेक्ट पर स्ट्रैटेजी बता दो कि कैसे आपने लाइक अकाउंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, कहाँ हम्म से क्लासेस ली थी, टीचर का नाम, एंड व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, क्या क्या रिसोर्सेज कवर करी थी, हम्म क्लासेस लेते टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, रिवाइज करते टाइम क्या स्ट्रैटेजी? Okay, so if I start with accounts, advanced accounts, I have taken from Anil Sharma sir. Offline coaching है जयपुर में. He's a very experienced teacher. So yeah, he has given us a module that was a very exhaustive module. It has many of the past year questions like 1990s, 2000s. They were basically very good level questions, I would say. तो सर वो कराते थे, तो उनको एक बार उनकी पूरी बुक जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चंस कराए, चैप्टर स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, तो उन्होंने होमवर्क से दिए, तो जितने उन्होंने क्वेश्चंस कराए उनके साथ प्रॉपर खत्म करें। फिर कुछ जो बच्चा देते उनको वीकेंड्स पे या वगैरह कि चलो ठीक है साथ में खत्म करें। देन इन इफ यू कंसिडर अबाउट द कंप्लीशन बाय माई सेल्फ, सो फर्स्टली मतलब अकाउंट्स वाज लाइक कि वो खत्म हो गया था ऑलमोस्ट मई में, वी हैव कंप्लीटेड अकाउंट्स, एंड देन जून और जुलाई में हमारा एडवांस अकाउंट्स खत्म हो गया था। तो उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो ठीक है, उसको तो जब भी इच्छा हुई उठा के कोई एक चैप्टर उठा लिया, उसके कोई भी क्वेश्चंस कर लिए, वो तो प्रैक्टिकल में तो इंसान बोर हो ही नहीं सकता, गाने भी चला लिए उसके साथ हो जाता है प्रैक्टिकल। तो कभी भी इच्छा हुई तो चैप्टर्स कर लिए। फिर उसके बाद मेजर मैं ये कहूंगा कि सर ने हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, फर्स्ट फॉर द हाफ कोर्स देन फॉर द फुल कोर्स। तो उसके साथ साथ जो जो चैप्टर्स उन्होंने बताए वो करते गए। तो हाँ वही था बेसिकली उस टाइम पे, मतलब ये था कि चलो ठीक है, मई और जून में जब क्लासेस खत्म हो गई तो कुछ चैप्टर्स वर लाइक जो जनवरी में हुए थे, तो उनके लिए फिर यूट्यूब को रेफर करा। यूट्यूब पे जो भी फैकल्टीज हैं, बहुत बढ़िया फैकल्टीज हैं आई वुड से, तो उनके रिवीजन लेक्चर्स को रेफर करके रिवीजन लेक्चर देखा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह सारे वही खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, आईएसआई मॉड्यूल बीइंग द प्रायोरिटी, बस। और लास्ट डे रिवीजन में तो मैं ये कहूंगा कि आई ऑर्डर्ड अ चार्ट बुक फ्रॉम सर जय चावला। दैट वाज अ वेरी नाइस चार्ट बुक आई वुड से, ऑल माय एएस वर रिवाइज्ड, क्विक ग्लांस उनसे मिल जाता था, तो उनसे बहुत हेल्प मिली थी फिर। तो टिप कि जैसे ना जो अभी जयंत ने बोला कि उन्होंने जय चावला सर की चार्ट बुक ऑर्डर करी थी, तो मैंने भी वो चार्ट बुक रेफर करे थे इन द लास्ट डेज ऑफ माय हम्म इंटर प्रिपरेशन, एंड हम्म दैट चार्ट बुक इज सीरियसली वेरी 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 हेल्पफुल एंड वेरी एग्जॉस्टिव। मतलब उनने पूरे के पूरे जो एएस कवर करे हैं ना एक एक दो दो चार्ट्स में, दे आर अमेजिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर यस। अ रिविजन बुक लाइक दैट, तो वो आप रेफर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, कमिंग टू लॉ। नेक्स्ट वुड बी लॉ आई वुड से। या लॉ तो ऐसा था कि लॉ में तो हमारा स्टार्टिंग से ही था, मतलब वो हमने अभिषेक लोहिया सर हैं जयपुर के हैं वो भी, तो उन्होंने हमको बताया था, मतलब उनकी एक बुक मॉड्यूल मिला था कंपाइलर हमें, तो इट वाज लाइक अ प्रॉपरली वेल अरेंज फॉर्मेट में था वो मॉड्यूल। मतलब जैसे आईसीए की बुक में इफ यू गो फॉर इट तो इट इज अ प्रॉपर लाइक द स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पेज एंड इट एंड अप इन ऑल द पैराग्राफ्स। सो सर हैज मेड इट इजी फॉर अस बाय रेफरिंग इट इन द टेबल्स and with the headings with sections. So yeah, I would say that वो बुक बहुत काम आई उसमें, मतलब वो हाईलाइट वगैरह करा देते थे, उसके चार्ट्स वगैरह उन्होंने खुद ने हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो भी क्लास नोट्स हो गए उनको प्रॉपर रेफर करा। और उन्होंने हमको ये बात स्टार्टिंग से बोली थी, फाउंडेशन में भी उन्होंने ये बोला था कि फोकस ऑन द कीवर्ड्स, कि आप पूरी लैंग्वेज तो कभी नहीं रट पाओगे, तो जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। और एडिशनली मैं ये बोलूंगा कि मेरी स्टार्टिंग से ये आदत है कि इफ यू आर लर्निंग अ सेक्शन, मतलब कुछ भी मैटर याद कर रहे हो तो उसका सेक्शन नंबर याद करो, क्योंकि ठीक है एज वी ऑल नो कि ठीक है सेक्शन के नंबर नहीं होते, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है मतलब एक खुद को मैपिंग करने के लिए आसान हो जाती है वो चीज, कि हाँ ये सेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये नंबर है उसका, ये नाम है, तो वो इजी काम में आ जाता है। फिर कभी नोट्स बनाने हुए, या सो एडिशनली आई हैव मेड अ डायरी, आई हैव मेड अ डायरी इन विच आई हैव रिटन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन नंबर्स एंड अ फ्यू लाइनर्स अबाउट द सेक्शन, लाइक जो मेन की पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो मैंने नोट डाउन करे थे। बेसिकली दैट वाज समरी वेरी ऑफ द हेल्पफुल फॉर द सेक्शन। लास्ट रिविजन। या हमेशा अपने नोट्स तो हेल्पफुल रहते ही हैं। सो फॉर दोज या हु वाचिंग दिस, तो लॉ में या फिर किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में मेकिंग योर ओन नोट्स इज लाइक यू नो, एक वो चीज होती है कि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप पास या फेल हो सकते हो। मतलब या
अगर आपने किसी टीचर की बुक रेफर करी है, चलो वो तो ठीक है कि उनने उनने बुक बनाई, बट हम्म। जब आप खुद से हाथ से लिखते हो ना, सो हाथ इट से इज सेइंग आप दैट इफ फेमिलियर यू आर हो। राइटिंग समथिंग दैट इज बेसिकली 7 टाइम्स रीडिंग। और खुद की या श्योर। हैंडराइटिंग में खुद के हाथ से लिखना, जब आप वो अपने सेम नोट्स को हम्म। लास्ट डे पे देखते हो, तो आपको रिकॉल होती है चीजें कि आपने लिखा था इसको, क्योंकि अपनी राइटिंग लिखा होती है था तो या। ज्यादा अच्छे से रिकॉल होता है। एंड देन एग्जाम में हम्म। फोटोजेनिक मेमोरी के थ्रू भी आपको रिकॉल होती है चीजें, जब आप लिख रहे या हो यस यस यस। तो फोटोजेनिक मेमोरी एंड भी या होती है। सो मेकिंग योर ओन एंड नोट्स आई इज वुड से I have वेरी referred the question bank of CA Shum Singhal sir. That was a very nice question bank. सेम 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 जैन। तो शुभम सिंगल सर की जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत अच्छी है, मतलब Yeah. उनके क्वेश्चंस बहुत, एक तो क्वेश्चंस भी काफी अच्छे से उन्होंने दे रखे हैं, Hmm. काफी सही फॉर्मेट में दे रखे हैं, एंड क्योंकि वो बहुत इजी टू रेफर है, तो वो काफी हेल्पफुल रहती है मुझे। Hmm. मैंने एम उनकी क्वेश्चन बैंक पे रेफर करी थी। Hmm. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन बैंक फॉर लॉ, यू कैन ऑफ Hmm. कोर्स रेफर सी शुभम सिंगल्स क्वेश्चन बैंक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। Costing, I would say costing is same as the practicals, like the book which we have got from Anil sir. Anil sir used to teach us costing and later on FM also. So yeah, that was enough. And in costing, I haven't referred. I don't remember of referring to any external videos. The sir which taught us was enough for us. So yeah, question practicing is the main thing, I would say. रिवीजन वीडियोस सिर्फ अकाउंट्स के लिए लिए थे, और जब मैं Accounts, law, and theory subjects, audit, I would say. ओके, सो कॉस्टिंग में आपने कभी रिवीजन वीडियोस रेफर नहीं करे थे, आपने सेल्फ रिवाइज। नहीं, self revise, yeah. Okay, so what do you think, Jan? What is better, revising with videos or revising by yourself? If you go by my perspective, revision videos are literally very useful for us. Like I have gone through many the LinkedIn posts or YouTube videos that say that you have to revise yourself. Like it is कि अगर आप YouTube वीडियोस ही देखते रहोगे तो फिर आपको वहां पे याद नहीं आएगा. पर लिया तो यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग डीप बैक ऑफ द साइड ऑफ योर ब्रेन. यू आर ओके कि हाँ ठीक है कुछ याद आ गया उससे. तो मतलब एक बार पहले रिवीजन वीडियोस देख लो, जिस सो दैट सब कुछ रिकॉल हो हाँ. जाए, बिकॉज रिवीजन वीडियोस हम्म. काफी एग्जॉस्टिव होते हैं। जब खुद से रिवाइज करते हो तो कुछ चीजें मिस कर देते हो आप, मिस बट हो जब आप जाती है या. रिवीजन वीडियोस देखते हो तो आप, क्योंकि आप टीचर आपको सामने से रिवाइज करा रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स 100% कवरेज मिल जाएगी, हो एंड देन यू जाता कैन है या. टेस्ट इट बाय योरसेल्फ। सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट स्टेप इज हम्म. रिवाइजिंग, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है हाँ. सब्जेक्ट में, तो गो विथ रिवीजन वीडियोस एंड तो देन या रिवाइज इट बाय योरसेल्फ। गो फॉर अ क्वेश्चंस या. ओके, नाउ द मेन सब्जेक्ट दैट इज टैक्सेशन, हाँ जो कि बहुत टैक्सेशन. डरावना लगता है बच्चों को। Hmm. So yeah, taxation. I have studied from C.A. Sachin Ajmera. He's a very brilliant teacher. He's of Jaipur itself, and he's a very nice teacher. I would say it was like he has devoted a major of the time in his income tax. That was very smooth. Like when the day he ended the income tax, we all were on the वर्ड कि यार ठीक है इनकम टैक्स तो अभी आप पेपर ले लो तो इनकम टैक्स हमारी अच्छे से आती है. देन पार्ट केम फॉर जीएसटी. सो या जीएसटी भी अच्छी थी. अच्छा पढ़ाया उन्होंने जीएसटी में. क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने लास्ट तक हमारी मतलब ही वाज द टीचर जो लास्ट तक हमारे तक कनेक्टेड था. मतलब इट वाज द ओनली द लास्ट 15 days which we were not in connection with any of the teachers. Like he was there कि हाँ तुमको कभी भी कोई डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो कोई ना कोई रिवीजन क्लास हो क्वेश्चंस को में हो तो वो सर लेते रहते थे क्लास में. तो या दैट वाज अ वेरी नाइस. And if you consider additional materials, so yeah, Bhavar Burana sir and Amit Mahajan sir, GST, that were brilliant. ओके, तो आपने मतलब बन्ने बुराना सर की क्वेश्चन बैंक रेफर करी होगी, द सुपर 30 क्वेश्चंस जो भवर बुराना सर की मैंने नोट्स वाली बुक रेफर करी थी. क्वेश्चन बैंक सर का यूज करा था मैंने. देयर इज अ बुक इन हियर. आई फॉरगॉट द नेम. इट्स योगेंद्र बांगड़. That is a comprehensive book that has almost all the questions, past years, module questions. Yeah. और डीटी यू सेड ना। या फॉर डीटीटी या. जीएसटी भी अवेलेबल है लेकिन जीएसटी में मैंने मेजर ट्राई करा कि एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो जाएं और फिर उसके बाद पास्ट ईयर को रेफर करा सिर्फ. बट जैसे जीएस, क्योंकि डीटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, अमेंडमेंट्स आ हाँ. जाते हैं, हमें पास्ट ईयर के कैसे रेफर करें, बिकॉज सोल्यूशन तो चेंज जाएंगे। नहीं वो सॉल्यूशन जो हमने बुक रेफर करी थी उसमें चेंज कर देते थे वो सॉल्यूशन मतलब एज ओके, पर तो द मतलब आपने जो अमेंडमेंट्स क्वेश्चन वो बैंक बुक भी रेफर अमेंड हो करी थी जाती थी. टीचर की, वो अमेंडेड हाँ या सॉल्यूशंस के साथ थी। बहुत दैट अमेंडेड इज होती वेरी या. प्लस, बहुत ज्यादा हम्म. बड़ा प्लस पॉइंट है गाइजे की, क्योंकि आप या इस, क्योंकि क्योंकि डीटी में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, तो आप अमेंडमेंट्स आते रहते हैं. पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रेफर ही नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन हम्म. चेंज।
बट दिस इज अ वेरी प्लस Yeah. पॉइंट कि सर ने आंसर अमेंड कर दिया था. Hmm. ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइक कि आरटीपीज एमटीपीज आपने करी होंगी, टैक्सेशन एंड आईडीटी की. या आरटीपी से मतलब टैक्स में पेपर्स और लाइक कि ठीक है वही बात जो आपने बताई कि इफ यू गो फॉर द बेयर पेपर्स, उनको मतलब मैंने रेफर करा था कि मतलब क्वेश्चंस अपने हिसाब से ये था कि उसमें आपने पूरा आपका कोर्स हो गया तो आपने पेपर उठाया, यू आर सिटिंग ऑन अ रैंडम डे कि चलो कुछ नहीं करने को तो एक पेपर उठा लिया. अब उसको रफ में ही सॉल्व करना है पूरा. तो मैं आज तक आई डोंट रिमेम्बर कि मैं 3 घंटे का भी टाइमर लगा के बैठा हूँ कि मतलब रैंडम बुक, एक पेन ले लिया, पेपर को प्रिंट कर लिया अपने पास, और फिर उसी में ही जो भी अपने हिसाब से आंसर बनता है उसको देख लिया. फिर सजेस्टेड को एक बार को देख तो लेता था, लेकिन हाँ उसमें फिर वही रहता था कि अमेंडमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, तो जितना होता था उनको खुद ही करने की ट्राई करता था. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऑडिटिंग, which is like ऑडिटिंग. a nightmare for CS students. ओह या, दैट वाज फॉर मी टू. आई स्टिल कांट बिलीव कि ठीक है इतने नंबर आ गए मेरे. लेकिन How हाँ, much did you score in audit? 71 इन ऑडिट. Oh my God. Guys, लाइक you're the मतलब right person to ऑडिट. know the strategy for audit. तो आराम से पेन पेपर लेके नोट कर लेना एक एक वर्ड जो जयंत बोल रहे हाँ. सो बेसिकली मतलब ऑडिट का सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो मॉड्यूल भगवान है, मॉड्यूल के आगे कुछ भी नहीं है. मॉड्यूल की इट इज लाइक उनको क्वेश्चन बनाना है तो वो मॉड्यूल की कोई भी लाइन उठाएंगे, पहला फुल स्टॉप देखेंगे और उसके आगे एक्सप्लेन लिख देंगे. अब उसके आगे के पैराग्राफ में जो भी पॉइंट्स बने हुए कुछ भी बने वो आपका लॉग आउट है, उनको सिर्फ आंसर चाहिए. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल को उठाओ, उसमें जितने भी बॉक्सेस हैं या जो भी है ना, उसको बॉक्सेस को सबसे ढंग से पढ़ो, और जितने पॉइंटर्स में गिवन है वो तो क्वेश्चन मटेरियल है ही है, वो तो मैं कह ही सकता हूँ क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं. फिर उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी मैं जो बताऊंगा कि मेरी जो हैबिट थी कि आई यूज स्टिकी नोट्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, की जैसे बुक उठाई, बुक में आपने पेज देखा कि चलो ठीक है ये पेज है, अब पूरे पेज पे या तो आप हाईलाइट कर लो जो जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट कर ली, या फिर आप एक बड़ा वाला स्टिकी नोट ले उसको पेज के टॉप पे चिपका दो, और क्वेश्चन का जो भी है मतलब जैसे कोई भी क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिख के, और जस्ट राइट द फ्यू पॉइंट्स कि हाँ आपको जो लगता है कि अगर मैं बाद में कभी इसको पढ़ूंगा तो मेरे को उस एक वर्ड से पूरा पॉइंट याद आ जाएगा, तो वो बहुत यूजफुल रहता है. बाकी चार्ट बुक्स वगैरह तो इजी आप रेफर कर ही सकते हो, वो तो कपिल गोयल सर की हैं, वो बहुत आराम से वो भी यूजफुल होती हैं. तो लेकिन आपने एक बार कभी को गोयल सर बुक की से अगर बुक, आपने आदत डाल ली तो दैट इज इनफ. तो बेसिकली यू रेफर्ड आईसीआई मॉड्यूल फर्स्ट एंड देन यू या रेफर्ड कपिल गोयल सर की चार्ट बुक. चार्ट बुक या. आपने खुद से भी नोट्स बनाए थे ऑडिट के. एंड हाँ मतलब अभिषेक सर जो लॉ पढ़ाते थे हमको वही ऑडिट पढ़ाते थे, तो ही ऑल्सो गेव अ लास्ट डे रिविजन बुक. आई वुड से दैट वाज अराउंड 50 और 100 पेजेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. सो दैट हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आई टोल्ड, कि उसमें वही कीवर्ड्स लिखे हुए डैश डैश लगा के कि मतलब यू हैव टू ओनली फ्रेम द सेंटेंस इन व्यू ऑफ दीज कीवर्ड्स ओनली. सो बिकॉज या ऑडिट दैट का वाज हेल्पफुल. 100% मॉड्यूल याद करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. मॉड्यूल कोई भी नॉट जड़ी बूटी पॉसिबल ले या. लो, पूरी मॉड्यूल याद करना तो नहीं नहीं कर ही नहीं इम्पॉसिबल ही है. सकते. ये ह्यूमन ब्रेन है, मशीन नहीं है तो नहीं नहीं याद हो होगा, सकता. कीवर्ड्स ही याद करने पड़े. और कीवर्ड याद करने आईसीआई या. भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100% मॉड्यूल लिखो. वो चाहता है कि या एक यूज यस. ऑफ मॉड्यूल होनी चाहिए. मतलब एक तो आप मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो, और एक जो होता है कॉमन परसेप्शन लोगों का कि यार ठीक है कुछ नहीं आता तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे. मतलब इट वाज लाइक कि ऑडिट का पेपर ऐसा था जिसमें मैंने, अगर 16 क्वेश्चन थे पार्ट्स में, तो मैंने उन 16 के लिए सिर्फ 16 पेजेस भरे हैं, उससे ज्यादा मैं गया ही नहीं. एक क्वेश्चन वाज लाइक फॉर अ पेज, किसी रेयर क्वेश्चन में मैं दूसरे पेज पे गया हूँ, उसी एक ही क्वेश्चन पे वही 4 पॉइंट है 5 पॉइंट है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स लिखे, कहीं एक्स्ट्रा आता है तो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए, उससे ज्यादा लिखने की नीड ही नहीं, क्योंकि जब वहीं उतने में ही मिल रहा है तो फिर ठीक है ना, व्हाई टू गो फॉर एक्स्ट्रा. एग्जैक्टली exactly. और अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा एग्जाम में. टाइम भी वेस्ट होगा या. एग्जैक्टली. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज EISSM. ऑल्सो EISSM अभी नहीं, ईआईएस जस्ट बिकॉज इन द नहीं है. सिलेबस तो हम एसएम, FMSM करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी. एफएमएसएम या. सो या एफएम का तो इट इज लाइक नाउ आई गेस इट इज ऑलमोस्ट 50-50 मार्क्स, इक्वल मार्क्स हैं अब दोनों के. यस यस. सो या एफएम का तो इट इज लाइक कि ठीक है एक क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं और एक थ्योरी क्वेश्चन है. तो आई वुड से कि अगर आप थ्योरी करते हो, थ्योरी इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया, मतलब उसमें गिने चुने चैप्टर से हैं लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पे. लेकिन अगर उसी टाइम पे आपका लक बहुत अच्छा हो हमारे जैसा, कि हमारे मतलब मेजर ये मानो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर वेरी इजी, सो या यू कैन गो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. मतलब इतना अगर लेंदी भी है वो क्वेश्चन, यू हैव टू ओनली
प्ले विद द टाइम, कि अगर आप टाइम में खत्म कर पा रहे हो तो प्रैक्टिकल से इजी वहां पे कुछ नहीं है। मतलब यू हमारे को तो क्वेश्चंस देखे हुए मिले थे कि मतलब एक बार को मॉड्यूल आप कर लो, पास पेपर्स दे आर द इनफ। इसके अलावा तो क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखे कि अगर नए क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी वही पैटर्न वही होता है। सो फ्रॉम द या फ्रॉम द मतलब मॉड्यूल। क्वेश्चंस करते जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स या मतलब मेन टिप इज क्वेश्चन सॉल्विंग इन एफ, कि कितने ज्यादा से ज्यादा या क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व। advantage मिलता है। So या did you solve RTP and MTPs as well for FM? Yeah, I have solved almost all the previous year papers. लाइक कि चलो ठीक है, कुछ चैप्टर उठा लिया, लाइक चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, या फिर आप पूरा पेपर जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एक चैप्टर खत्म करके उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, या फिर आप पूरा पेपर उठा के बैठ सकते हो कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन कर सकते Okay, so this is up to the comfort level of yours कि आप कैसे हो। या comfortable हो। हम्म Okay, now coming to SM, strategic management. एसएम तो आई वुड से कि हमारे सर थे, दीपक सर थे, दीपक खंडेलवाल सर। he used to teach us EIS and SM both. So yeah, he has given us a module. So basically it was like कि ICA में it was 8 chapters I guess, कि ICA module has 8 chapters. So sir has basically done for us was sir has divided out those 8 into 10 chapters. So I only referred his book, and for the questions I would say I referred ICI module, and he has given us a separate book for MCQs. So yeah, MCQs भी बहुत सही चीज है, तो ऐसा फिर मैं याद कैसे बताऊंगा। करी थी SM को? सेम कीवर्ड स्ट्रैटेजी। और मतलब सर का ये था हमारे लिए कि क्लास में बैठे हो तो क्लास में तो ठीक है, अब इतना थ्योरी का सब्जेक्ट है तो नींद आएगी आएगी। सर ने हमको कहा था कि क्लास में तुम बैठे हो तो अपनी एक कॉपी लेके आओ साथ में, मैं पढ़ा रहा हूँ, और साथ के साथ ट्राई करो कि तुम जो नोट जो काम तुम घर जाके करोगे, क्योंकि EIS और SM वैसे भी बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है, तो तुम घर जाके तो उसको हाथ लगाओगे नहीं। तो तुम्हारा फिर वो सारे सारे लास्ट के दिनों पे फिर तुम्हारे सिर पे लगेगा कि यार कितना हार्ड सब्जेक्ट है, तो इससे अच्छा जो काम करना है यहाँ करके जाओ। तो मतलब वहीं बैठे बैठे क्लास में नोट्स बना लिए, और फिर उनको घर आके टाइम मिला तो एक बार उसको रिवाइज कर लिया कि हाँ आज सर ने ये पढ़ाया पूरे दिन में। ज्यादा होता नहीं था, 1.5 से 2 पेज होता था, तो उसको आके इजीली रिवाइज कर लिया, बस ये काम है। तो गाइस दिस इज अ वेरी गुड टिप कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना थ्योरी सब्जेक्ट्स में, उसके बाद हम्म। घर पे आके भले गिव इट अ 15 मिनट, 15 मिनट ग्लैंस, या कि एक बार उसको हम्म पढ़ो जरूर। मतलब वो रिकॉल हो जाता है पढ़ो, आपके यस। दिमाग में एक बार। हम्म। तो या चाहे 15 मिनट लगाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, बट एक बार बस। उसको क्विक रिवाइज जरूर कर लो। या दैट्स ओके, सिंपल। सो ये थी आपकी सारी ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज कि आपने हम्म कैसे पढ़ा था। नाउ वुड हम्म लाइक टू नो कि व्हाट इज दैट वन मेन फैक्टर व्हिच हेल्प यू टू अचीव दिस ऑल इंडिया रैंक। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल कि ठीक है, मतलब जिस दिन से घुसे थे सीए के कोर्स में, उस दिन से यही था कि ठीक है यार पास तो हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। तो स्टार्टिंग से मेरा था कि ठीक है रैंक तो लानी है, मतलब इट वाज लाइक कि ठीक है रैंक लानी है। फिर धीरे धीरे लगा कि यार पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मैंने कहा ठीक है लेट्स कीप इट इन द बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ठीक है लानी है, प्रिपरेशन अपनी पूरी करते हैं, जो होगा लास्ट में वो देखा जाएगा। मतलब इट वाज लाइक कि एंड डे भी जब मैंने रिजल्ट मेरा देखा था तो इट वाज लाइक 590 मार्क्स। सो मेरे को था कि 600 के आसपास रैंक आती है, तो मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल करके बोला कि भाई एक बार चेक तो कर ले तू रैंक। मैंने चेक करी तो या आई गॉट 34 एंड आई वाज रियली हैप्पी एट दैट मोमेंट। सो या स्टार्टिंग से दिमाग में रखो, लेकिन हाँ उसको प्रेशर मत बनाओ उसका कि हाँ ठीक है रैंक लानी है रैंक लानी, मतलब डीप डाउन अंदर से सोचो, और खुद को मोटिवेशन मिलता है यार। ये तो है ही, फिर आप जिस एनवायरनमेंट में हो, आपके सारे दोस्त हैं फैमिली है, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि हाँ ठीक है जो आपने सोचा वो आप कर ही लोगे। तो ऑलवेज कीप इट इन अ माइंड कि हाँ लेकिन रैंक हम्म लानी है, लेकिन ऐसे लानी है। दिमाग मतलब सिर्फ दिमाग में मत चढ़ने दो रैंक को, नहीं तो फिर वो पढ़ाई में आने हाँ का या करती है। तो दिल में रखो यस, कि हाँ ठीक है रैंक लानी है। कि हाँ ठीक है रैंक इज लानी है। लाइक रैंक इज लाइक प्यार, जब तक दिल में तो तक ठीक है, दिमाग पे चढ़ेगा तो दिक्कत हो ठीक जाएगी। है, तो तो कीप इट फिर इन योर हाँ हार्ट दिक्कत कि होगी। हाँ भाई रैंक क्या। लानी है, बट दिमाग में मत चढ़ने दो। हम्म ओके, सो नाउ आई करेक्ट। वुड लाइक टू नो सम डूज एंड डोंट्स, लाइक कि अभी जो बच्चे सीएमए की हम्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या हम्म चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट दे कुड क्लियर देयर एग्जाम विथ तो रैंक। यार अभी तो मेरे हिसाब से तो मई में उनके एग्जाम्स हैं, तो ऑलमोस्ट सबकी क्लासेस तो फिनिश हो गई होंगी। सो या अब नाउ फोकस ऑन की रिवीजन
करना है, मतलब मैक्सिमम 2 रिविजन शैल बी इनफ। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि 4 बार रिविजन करो, 5 बार रिविजन करो। वो Absolutely. देखो जिसका होता है, अगर वो हो पाता है तो हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फायदे की चीज है। लेकिन उसके चक्कर में फिर वही हो जाता है कि आप एक बार को आपने दिमाग में रख लिया कि हाँ मुझे 5 रिविजन करने हैं, फिर एट द लास्ट अगर आपके 4 भी होते तो आपको वो 4 नहीं दिखेंगे, वो एक दिखेगा कि यार वो एक नहीं हुआ यार, पता नहीं अब क्या होगा। सो या उसको एक बार को तो अवॉइड करो। फिर उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट 1.5 डे, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है। उस 1.5 डे पे आपको पूरा जो आपने 10-11 मंथ्स में पढ़ा है उसको समराइज करना है। वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आपने वहां पे खत्म करा पूरा कोर्स तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंस में जाओगे। फिर उसके बाद दूसरी चीजों में कहूंगा कि एक आपको मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 तो देने ही देने हैं। और उसमें भी आपको ये नहीं देखना कि यार ठीक है मेरी तैयारी पूरी हो गई है, अब मेरे नंबर कैसे आएंगे। आपको वहां पे जाना है, 3 घंटे बैठना है और सिर्फ उस पेपर को खत्म करने की ट्राई करनी है कि जितना होगा उतना उस पूरे को मैं अटेम्प्ट करूंगा। और हाँ, यही मैं आईसीआई में बोलूंगा कि जब आप अपने पेपर देने जा रहे हो तो प्रॉपर ये ट्राई करो कि यार 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर दो। क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था पास होने का, इसीलिए था क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पेपर्स पूरे लिख के आया था कि 100 मार्क्स है, तो मैं 95 से 100 के बीच में सारे पेपर अटेम्प्ट करके आया था। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई ठीक है, पास तो मैं हो जाऊंगा आराम से। तो बस ये सबसे बड़ी चीज है। तो जयंत, आपने और जो बाकी मॉक वन पॉइंट टेस्ट फाइव डेज को फैसिलिटेट करो। हम्म। आपने जो मॉक टेस्ट दिया था, आपने आईसीआई सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट दिया था या फिर घर पर ही दिया था? नहीं नहीं नहीं, जो सर ने लिए थे हमारे वही दिए थे मैंने, और बाकी आईसीआई के तो कोचिंग एक या इंस्टीट्यूट दो बार वाले? ट्राई करे थे घर पे बैठ के। हाँ। ओके ओके ओके। एंड सम डोंट्स जो अवॉइड करने चाहिए स्टूडेंट्स को? और डोंट्स तो आई वुड से कि एक तो अब तो ठीक है क्लासेस हो गई, और कि एक तो कोर्स को बिल्कुल लाइटली लेना कि हाँ ठीक है यार हो जाएगा हो जाएगा। वो नहीं होता है। एक बार को उसको मतलब फर्स्ट ट्राई कि यार एक बार को मैं पूरा खत्म करूं, उसके बाद मैं ट्राई करूं कि यार चलो एडिशनल चीजों पे चला गया। ये तो बच्चे मॉड्यूल्स नहीं करेंगे, पहले पास्ट ईयर पे चले गए, तो एक बार को पहले मॉड्यूल को रखो। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि लोगों का ये होता है कि यार ठीक है पेपर आ रहे तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए कि किसी से बात नहीं कर रहे, अपने जो कमरे में उसी में कि नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, लोगों से आपने सोशल मीडिया कम करा, सब ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप रिफ्रेश हो सको। कि आप वहीं पूरे दिन वहीं पे उसी एक कमरे में बैठे हो अपनी टेबल बुक्स के सामने, तो इंसान बोर हो जाता है। यू आर लाइक बर्नट अप। तो इससे अच्छा कि टेक अ थिंग फॉर योरसेल्फ कि हाँ चलो ठीक है ब्रेक है, तो मैंने गाने सुन लिए, मूवी देख ली, मतलब वंस इन अ वीक इट इज ओके। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ यू हैव टू कीप समथिंग इन माइंड कि अब चलो हो गया पूरे वीक का टारगेट्स अचीव हो गए, तो चलो अब कुछ बनता है मेरे लिए खुद के लिए रिवॉर्ड एक। सो या। ओके, सो कीप अ रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ इफ यू हैव अचीव द हम्म। माइलस्टोन। तो आप खुद को या रिवॉर्ड करो, जिससे आपको ना मोटिवेशन मिलती है ऑल इन मिलता ऑल। रहेगा या। अगर आप हंड्रेड हम्म। परसेंट कट ऑफ कर लोगे तो भी तो ये नहीं हो फिर जाएगा नहीं कि होगा। ना आप बहुत ज्यादा लोन फील करोगे। या राइट? दैट वुड बी यस। ओके। नाउ आई वुड लाइक टू नो दैट, एक तो अपनी फैकल्टीज ने बताई थी कि आपकी क्या क्या हम्म। फैकल्टीज, एक बार उनको प्लीज समराइज कर हम्म। दो कि कौन कौन फैकल्टीज आपने रेफर करी थी। तो या अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स आई वुड से अनिल शर्मा सर, एंड ऑनलाइन में जाऊँ तो जय चावला सर। देन आई वुड गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ में शुभम सिंगल सर और अभिषेक लोहिया सर। Then corporate law में I would go for Harsh Gupta sir also. I have seen a few revision videos of him. Cost में तो only I would say अनिल sir, क्योंकि उन्हीं से मैंने क्लासेस ली हैं। Then taxation में भंवर बुराना sir and अमित महाजन sir. Then auditing में कपिल गोयल सर, शुभम केसवानी सर एंड द सर्विस अभिषेक सर जिन्होंने हमको पढ़ाया। एंड एफएम एंड एसएम, एसएम में तो आई वेंट रेफर्ड अपार्ट फ्रॉम दीपक सर, एंड एफएम में भी या अनिल सर आई वुड से ओनली। ओके, सो दिस फैकल्टीज आर रेफर्ड बिकॉज स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता या। है फैकल्टीज में कि कौन सी फैकल्टी हम्म। बेटर है। बट आई वुड सजेस्ट कि किसी भी फैकल्टी के लिए जब आप जा रहे हो ना, तो एक बार उनकी डेमो लेक्चर या। देखो। Because हम्म। जो बेसिकली जैन के लिए अच्छा हो, शायद वो आपके लिए अच्छा ना हो। और जो आपके लिए नहीं अच्छा या दैट डिफर्स। है, तो ये बहुत ज्यादा ना सब्जेक्टिव होती है चीज, कि आपकी सब्जेक्टिव या। एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। हर हर किसी की एक्सपेक्टेशंस ना टीचर अलग होती है कि आप क्या अलग आस्क। अलग। एंड राइट? आई वुड लाइक टू ऐड कि ठीक है आपने किसी की क्लासेस ली, तो फिर उसी टीचर पे विश्वास करके कंप्लीट करो क्लासेस को। कि ये नहीं कि आपको आपका दोस्त बोल रहा है कि नहीं भाई मिड ऑफ द क्लासेस की नहीं यार इनकी अच्छी नहीं है, तो ठीक है भाई जैसी भी है उनको खत्म करो, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रादर उनको कुछ बोलने से अच्छा उसको आप उसी वे में खत्म करो, तो वो बेनिफिशियली रहेंगे आपके लिए। ओके, सो बेसिकली स्टिक टू द टीचर जो भी या। आपने करें हम्म। शुरुआत से। अपना मन या डाइवर्ट मत करो कि कोई और कुछ कह रहा डाइवर्ट। है, तो उनकी चॉइस अलग है, हम्म। आपकी चॉइस अलग है। राइट? अलग। थैंक यू या। सो मच जयंत फॉर स्पेयरिंग योर टाइम
for this interview. I hope you had fun. And thank you so much, everyone, for watching this podcast. I hope you all gained some insights कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हाउ एन AIR prepares, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं, उनने कैसे पढ़ा था, किससे पढ़ा था. So thank you so much, Jayan, for sparing your time and coming to my YouTube channel. Yeah, thank you for inviting. That was a great experience talking to you. Thank you. Thank